आज तीसरा दिन, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 20 लाख करोड़ रुपयों के आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपसे इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में दो खास पैनलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में चर्चा के लिए शामिल हो चुके हैं। एक है आर्थिक विश्लेषक, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय, दूसरे राहुल लाल जी। हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आइए सीधे लिए चलते हैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। India reach certain global benchmarks. Very quickly, I'll tell you, you are aware that India is the largest milk producer, largest jute producer, largest pulses producer, dals, variety of dals. It's also the second largest in global numbers, second largest in the production of sugarcane, in the production of cotton, groundnut, fruits, vegetables, and also in fisheries. India is also third globally placed in the production of cereals. So really, Indian farmers have really endured but made sure that his holdings may be small, but he would give us the highest yield. So today, we want to show you some of the slides also. Very quickly, without spending much time, I'll tell you what kind of support systems that we had established during the lockdown period, so that, as you are aware, keeping all the respects for social distancing and also ensuring all kinds of preventive measures are taken during the lockdown. It goes to the credit of our workers in the fields, our farmers, the peasants and the marginal farm landholders, that they almost concluded the Rabi crop harvest. And also, many of the states have been successful in somehow pushing ahead with due procurement process. The crops have been largely procured in the wheat and the rice growing areas. The process is ongoing, but it goes to the credit of our rural population. So today, therefore, I'll also be showing you a slide a bit later on what we have done in the last 2 months to make sure that agriculture work was supported during the lockdown, just the 2-month story. But otherwise, post that, I'd like to highlight what are we announcing today for supporting agriculture and allied activities. I'll be announcing 11 measures, and from among them, 8 of them relate to strengthening infrastructures, strengthening capacities, building better logistics, and so on. So 8 of the 11 relate to such things where government allocates money, activities will be undertaken in such a way that very quickly we can ramp up on storage, capacities, logistics, and so on. The rest 3 today of the 11 will pertain to governance and administrative reforms. So that's the picture I'd like to put before you. But before we go to the slides, in Hindi. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके ही आज तीसरे दिन की मीडिया ब्रीफिंग में हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज कृषि के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। कृषि अगर किसान केंद्रित नहीं होगी, किसान कल्याण के लिए नहीं होगी, तो मुझे लगता है अधूरा रह जाता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम भी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जैसा रखा था। तो किसानों के कल्याण के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कदम उठाए गए, चाहे वो पीएम किसान योजना है कि साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में सीधा जाएगा, करोड़ों किसानों का आज सीधा उसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाढ़ सूखे के समय उनको भरपाई होना, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर उनकी ज़मीन के बारे में बताना, ये बहुत सारे कदम पूर्व में उठाए गए। और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर, उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें 2 बातें हमने फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त इमरजेंसी
वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी, जो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और 2 लाख क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको लगभग 2 लाख करोड़ का जो हमने लाभ देना था 2.5 करोड़ किसानों को, उसकी विशेष मुहिम चलाई जाएगी। ये पिछले कल आपने आपके सामने रखा था। आज कुछ और कदम उस दिशा में हम उठाने वाले हैं, जिसके 11 बिंदु होंगे, उसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। About yesterday's announcement, I think the slide has got enough to give you. I'll straight go over to covering today's announcements, but linkage with the 2 steps that I had announced yesterday for the agriculture, for the farmers' welfare, for the additional emergency working capital requirements through NABARD, which we would be infusing, and also to make sure that 2 lakh crore credit will be available under the Kisan credit card. Those were particular references to yesterday. Now we move over to today's, where we are coming up with, oh yes, sorry, before I go to that, in the last 2 months, very quickly, a number of measures have been taken to support farmers. Particularly additional steps that we had taken where the minimum support price purchases to an extent of 74,300 crores had taken place during the lockdown. 74,300 crores of purchases based on minimum support price happened during the lockdown, and also 18,700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into their accounts under the scheme PM Kisan Samman, and that is only during the 2 months. And then Fasal Bima Yojana claim payments have been cleared to the extent of 6,400 crores in the last 2 months. Bima Yojana claims, when a farmer wants to utilize and ask for the claim so that he gets the insurance money in his name, such claims totaling 6,400 crores have been cleared in the last 2 months. We now move to the steps that I want to announce today. There's additional steps also important to know that during the lockdown, all of you all would have been reporting also, media, that milk was being produced and the usual restaurants and the hotels and the consumers were all under lockdown. So a lot of dairy industry people were put to severe difficulties. The milk was being thrown on streets saying our consumers are all locked down, they can't buy it from us. So during that period, 560 lakh per day of liters of milk, 560 lakh liters of milk were procured by cooperatives against the daily sale of 360 lakh liters which is produced per day. Now those were also utilized for a further amount of 111 crore liters have also been extra procured over and above the usual quantities which come to the market. 4,100 crores have been paid on that account. So money goes to the hands of the milk producing farmers or dairy keepers. A new scheme also was utilized for interest subvention of about 2% per annum for dairy cooperatives. Additionally, 2% per annum of interest subvention also was provided to incentivize prompt payment, repayment and interest servicing. So, and this scheme is further to be continued, and this is expected to unlock 5,000 crores of additional liquidity benefiting 2 crore farmers. So this is something which was triggered during the lockdown so that farmers get the money in their hands. This is the impact which I'd like to draw your attention to. कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत
18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे वो 6,400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। और यही नहीं, पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की जिंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए। लेकिन दूध की खपत कम हुई और कुल 360 लाख लीटर दूध जो प्रतिदिन पहले वो खरीदते थे उसकी बजाय 560 लाख लीटर प्रतिदिन उन्होंने दूध खरीदा है, जिसके चलते कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई। और कुल मिलाकर 2% जो है वो ब्याज अनुदान उनको दिया गया। और जिन्होंने जल्द पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की है या इंटरेस्ट सर्विस समय पर किया है, उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान 2% और दिया गया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का लाभ इसमें हुआ, उनको भुगतान हुआ है। और कुल मिलाकर 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट इसमें हुई, जो लगभग 4100 करोड़ रुपए की है। Again, for the last 2 months, just to give you reassurance that some of the dates which we had extended for fisheries related activities, because many of them had overseas contracts in getting the brood stock or in getting some of the consignments which were coming from abroad, all the deadline extensions have been honored. The validity for SIPs, sanitary import permits for import of shrimp brood stock, was extended by 3 months. We have also condoned the delay of 1 month in the arrival of brood stock consignments, and for all the quarantine cubicles which were booked, but because of the delays, they were going to have to forfeit the monies that they paid. We allowed rebooking at no extra or additional charge. All this has been respected, and also the verification of the documents for grant of NOC for quarantining has also been relaxed from 7 days to 3 days. So very many measures which will help shrimp farmers, marine farmers, and also coastal farmers, which were given the kind of extension because of the lockdown, have all been extended duly, and help and assistance have been extended as promised. So I want to underline the fact that registration of 242 registered shrimp hatcheries and also rearing hatcheries were expiring on 31st March. They have been extended by another 3 months without any additional burden on them. So such operations also of the marine capture fisheries and aquaculture have also been relaxed to cover inland fisheries and hatcheries. पिछले 2 महीनों में 242 नई श्रिम्प हैचरीज को रजिस्ट्रेशन दी गई, और जो रियरिंग हैचरीज जिनकी एक्सपायरी 31 मार्च को हो रही थी उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। और बाकी ऑपरेशंस भी मरीन कैप्चरिंग के लिए जो थे उनको और एक्वाकल्चर के लिए जो रिलैक्सेशन देनी थी वो भी दी गई, और जो 4 घोषणाएं हमने इनको लेकर पहले की थी उनको भी लागू कर दिया गया है मत्स्य पालन को लेकर। I go to today's announcements, the third tranche covering agriculture. First 8 steps are towards monies going for infrastructure capacity building. And from among the 8, so the first one is we provide 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which are mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. Here private entrepreneurs, agricultural entrepreneurs, startups, all of whom are now looking at facilitating by procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created.
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आर्थिक पैकेज की डिटेलिंग आज तीसरे दिन की जा रही है, जिसमें कि सिंचाई, कृषि, पशुपालन, मछली पालन और फूड प्रोसेसिंग से लेकर के अब इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त ये पूरी प्रक्रिया डिटेलिंग की चल रही है। हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुरुआत राहुल लाल जी आपसे करते हैं। अभी तक जो बातें कही जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट 2020 का बजट पेश किया जा रहा है। हमने क्या किया है पिछले दिनों में, उन चीजों को भी काउंट करके निर्मला सीतारमण उसी 20 लाख करोड़ रुपयों का हिस्सा उन्हें बता रही। नहीं, यही एक जो पूरा मैं पैकेज देख रहा हूँ, पिछले लगातार जो इसका अवलोकन कर रहा हूँ। देखिए, हमारा बजट 30 लाख करोड़ रुपया का वार्षिक बजट था जी। तो हम लोग जिस पैकेज का इंतजार कर रहे थे वो पैकेज वो था कि एक तो वो 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त होगा जी, और वो सीधे सीधे एक तरह से जो है कि फ्री फ्लो, एक तरह से फ्रेश मनी मार्केट में जो है कि एक्चुअल मनी जो है कि वो प्रवेश कराएगा, वो जिससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आएगी। तो अधिकांश उपाय जो सरकार के दिख रहे हैं, देखिए नीतिगत फैसले हैं, अच्छे फैसले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसानों के दूध बर्बाद हो रहे हैं तो अगर सरकार ये प्रयास कर रही है कि उसको उसका प्रसंस्करण हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतिगत फैसले सरकार के अच्छे हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के सामान्य दिनों में इसको बूस्टअप देने के लिए हो सकता है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के पहले ही इसके कई सामने में कई चुनौतियां थीं। अभी कोविड-19 के बाद वो चुनौतियां और गंभीर हो गई। तो इसमें दुनिया के अन्य देश जिस तरह से बिल्कुल खुल के सामने में सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट की ज़रूरत थी। आप प्रायः अधिकांशतः जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो आप लोन बेस पे कर दे रहे हैं या अन्य अलग अलग चीज़ों पे कर दे रहे हैं। जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग देखते हैं, अगर वित्त मंत्री की घोषणा में तो उन्होंने एक बताया कि इतने हजार अमाउंट जो है वो एमएसपी पे खर्च किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे। अब रियल में स्थिति क्या है हमारे देश की? हम लोग केवल जो टोटल कृषि उत्पाद है उसका केवल 6% पे ही किसानों को एमएसपी का लाभ मिल पाया है आज तक, तमाम प्रयासों के बावजूद भी। यानी इसका मतलब है कि 94% जो क्रॉप्स हैं वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। आप अगर इस तरह का कुछ घोषणा कर भी लेंगे तो मुश्किल से थोड़ी बहुत हो सकता है कि वो 94 जो 6% है वो 8% हो जाए, 10% हो जाए, लेकिन उससे किसानों को जो या अर्थव्यवस्था को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। एक जो चीज़ सरकार कर रही है, जिसके ऊपर सरकार को जोर देना चाहिए, वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें सरकार ने बताया कि हमने 18,700 करोड़ रुपये दे दिए, जो स्क्रीन पे आ भी रहा है। अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो राशि बहुत कम है। यानी 2,000 रुपया जो आप दे रहे हैं, कम से मिला जुला करके आप संतुष्ट नहीं है, निराशा आपको हाथ लग रही है? मुझे निराशा लग रही है, क्योंकि सरकार को कम से कम उस राशि को जो 2,000 है उसको कम से कम 8,000 तो कम से कम कर देना चाहिए, जिससे कृषकों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ती। अभी इस समय एक तरह से ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, आप सहमत हैं सर इससे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी को अपना और इस देश का इतना समय जो था बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। ये काम जो वो कर रही हैं वो पीआईबी का कोई भी अधिकारी विज्ञप्ति जारी करके कर सकता था। तो चूंकि वो जो अब तक हिसाब किताब दे रही हैं वो बता रही हैं कि हमने 2 महीने में इतना कर दिया, 3 महीने में हमने इतना कर दिया। तो आप फरवरी में बजट पेश कर चुकी थी, दूसरा बजट आप फिर मई में आप उसको पेश कर रही हैं, यही कहा जा सकता है और तो कुछ नहीं कहा सकता। क्योंकि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें ये तो कुछ है ही नहीं कि आगे जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी को लेके 74,300 करोड़ रुपयों की किसानों की फसल की खरीद होगी, तो ये हेल्प क्या हो रहा है इसमें? ये तो किसान अपना अनाज दे रहा है, बेच रहा है, आप उसके बदले उसको पैसा दे रहे हैं। आपने एक बजट इसके लिए तय कर दिया कि साहब हम इतना खरीद पाएंगे। हालांकि कितने किसानों का खरीदा जा रहा है? डायरेक्ट किसान गांव में कितने लोग हैं जो अपने गल्ले की, अपने अनाज की बिक्री कर पा रहे हैं? वो एक बड़ी कड़वी हकीकत है। वो 6% है, वो आंकड़े सरकारी बता रही है कि 6% है, वो 6% है। और ऐसे में इसको भी इसी राहत पैकेज के तौर पर आप उसमें शामिल कर रही हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पैकेज मतलब राहत पैकेज का मतलब क्या है? राहत पैकेज क्या है? मतलब आप लोन को शामिल कर रहे हैं, आप जो खरीदारी करते रहे हैं उसको आप शामिल कर रहे हैं, तो ये कौन सा राहत पैकेज हो गया? मतलब जिस समय संकट का समय है, आप सबसे देखिए, किसान जो है वो डीजल पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए जी। आपने डीजल पे दाम बढ़ा दिया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम कम हो रहा है, पानी से भी सस्ता जो है वो तेल हो रहा है, उस समय आप जो उत्पाद शुल्क बढ़ा करके मतलब उसे बढ़ाए रख रहे हैं। तो ये राहत है, ये क्या है? ये मतलब
सरकार को कम से कम इतना ईमानदार होना चाहिए। इसे पूरे तौर पर खारिज भी कर देना कि सरकार ने जो कुछ किया, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए इन चीजों को कुछ बहुत अच्छा सा देखे, टीवी स्टूडियोज में डिबेट करने के लिए या बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखने के लिए बहुत खूबसूरत देखे, ये कहना भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि इस बीच में ये सारी चीजें जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं उसका फायदा तो आगे आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में तो सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है वो तो लोगों को मिलेगा ही। देखिए वो असल में ये अपने आत्मनिर्भर भारत के फिलहाल अनुराग ठाकुर पूरे उस दिन के संबोधन में देश के सामने बात रखी, और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जिससे जुड़े उनको भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात यह होगी। क्लस्टर बेस पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मखाना हो। तो इस सब बातों को लेकर, यानी कि सभी राज्यों को तो आज नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह जहां जहां जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया। I go to the third of the 8. तो ये बातें जो कि आप सुन रहे थे कि किस तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। अब ऐसे में राहुल लाल जी, 1 लाख करोड़ रुपयों के प्रावधान और इसके साथ साथ में दूसरी तमाम जगहों की जो मशहूर चीजें हैं उनके लिए अभी बजट का ऐलान किया गया। अब इसको आगे आने वाले महीनों में जमीनी स्तर पर इसका नतीजा क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर सरकार इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे करेगी जी, तब तो फिर हम लोगों को इसमें समुचित सफलता हासिल नहीं होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण इस समय 2 लाख करोड़ के घाटे में है। जिस आधार पर सरकार कहती थी कि हम नेशनल हाईवे प्रत्येक दिन जो है कि हम 26 किलोमीटर बना रहे हैं, अब वो घाटे में जा चुकी है। तो उसमें बहुत सारी कंपनियों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों के पैसे फंस चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग दूसरे NBFCs के अलग अलग प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। तो इसलिए वो नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे भी तो वो उनका प्रयास होगा कि इसी सरकारी धनराशि का ही कहीं न कहीं किसी तरह से दुरुपयोग कर लेने का। तो सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद से अपना पैसा लगाएगी और अगर निर्माण करेगी तब तो ये काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर वो बार बार, जैसे कल भी हम लोगों ने घोषणा में देखा कि उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनके लिए मकान बनाए जाएंगे, लेकिन वो PPP मॉडल पे वो बातचीत हुई कि वो 11,000 करोड़ रुपया उसमें दिया गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर की गई। तो इसलिए इस तरह की योजना, सवाल ये है कि जो मकान सस्ते किराए पर उनको मकान दिया जाएगा यानी कि मकान बनाए जाएंगे। ये प्लान तो बहुत लंबा है, 1-1.5 साल के बाद में कहीं जाकर के तैयार होगा। अगर प्लानिंग होगी, जमीन स्तर पर आएगा। मौजूदा वक्त में उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए मकान की जरूरत क्या है और उनकी जरूरतें क्या है और उसके लिए क्या प्लानिंग है। अभी तक सस्ते दरों पर मकान किराए पर देना, ये तो 1-2 साल लगेंगे आपको बना करके तैयार करने में। 2 साल के बाद की जरूरत का आज आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब वही सोचे ना कि हम लोग एक तो वो डिस्कस कर रहे हैं। यही कारण है कि वित्त मंत्री के तमाम घोषणाएं हो रही हैं और सड़कों पे मजदूरों का बिल्कुल जो है कि वो बिल्कुल बदहाली की अवस्था में अपने घर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो अभी आवश्यक था कि उनको त्वरित तौर पर रोका जाए, क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। देखिए, आपने कल क्या घोषणा किया उनके लिए। सरकार ने एक तरह से 3,500 करोड़ रुपया जो है कि अलग से रखे, एक तरह से 8 करोड़ उन मजदूरों के लिए, उनको 2 महीने के भोजन के लिए जो है अलग से बजट रखा गया है। अब रियल में वो बजट ऐसा है कि अगर उसको प्रत्येक दिन के हिसाब से आप बांट देंगे तो एक मजदूर को एक दिन के खाने के लिए 7 से 8 रुपया का भोजन आ रहा है, जिसमें कि उसको दोनों समय का भोजन, नाश्ता। तो प्रैक्टिकल तौर पे आप उसके लिए कुछ बजट का एलोकेशन भी नहीं कर रहे हैं। जब बजट का एलोकेशन ही प्रैक्टिकल तौर पे इसमें नहीं है तो फिर वो जमीन पे वो योजना क्रियान्वित कैसे होगी? ठीक है, मगर चूंकि दोनों लोग ही अपनी बात में आज एक और बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन
इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त जो होगा, अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। We move next to the संपदा योजना और मछली पालन को लेकर के ये अनाउंसमेंट किया गया। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, सरकार की तरफ से कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, कृषि से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। खेती और एग्रीकल्चर जो कि देश का सबसे बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है, क्या 70-71 वर्षों में अभी आप खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तक नहीं कर सके? 1 लाख करोड़ रुपयों से सरकार क्या करेगी? किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सरकार कर रही है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को उस समय जो थी सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए थी, जो किसानों के कर्ज हैं उनको माफ़ करने की। जो इस कहीं राहत पैकेज में दिखाई नहीं पड़ रही है। ये आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सरकार बेहतर बताएगी, क्योंकि उसी ने घोषणा की है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए से जो है कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगी। यानी हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका 65 से 70% जो है वो निर्भरता जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था के ऊपर टिकी हुई है। और उसके लिए आप 1 लाख करोड़ रुपए का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर सिंचाई एक बड़ा मुद्दा रहा है किसानों के लिए, क्योंकि अगर सूखा पड़ जाता है तो फिर खासतौर पर खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, धान की फसल नहीं हो पाती। सिंचाई का है, और अभी आप देखिए क्या हुआ है कि ये फसल जो है बुरी तरीके से किसानों को नुकसान हुआ है। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जो जबरदस्त ओला और बारिश हुई है, तो किसान की फसल जो है, और लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय आपने किसान को बाहर भी नहीं निकलने दिया था, तो वो जो किसान की फसल का नुकसान हुआ, आखिर वो फसल कहाँ जाएगी? मुझे लगता है कि सरकार को उस समय घोषणा करनी चाहिए थी कि किसान की फसल किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, उसको सरकार खरीदेगी, संपूर्ण फसल खरीदेगी। ये नहीं कि हम 7400 करोड़ का ही खरीदेंगे। राहुल लाल जी, सरकार के लिए इतना बड़ा गले की हड्डी क्यों बनता रहा है कि उसे ना उगल पाती है, ना निगल पाती है, ना मना करती कि साहब नहीं कर पाएंगे, ना ये कहते कि हम कर देंगे, और कर देंगे तो जमीनी स्तर पर नतीजे क्यों नहीं? क्यों नहीं मंडियां, सरकारी मंडियां या सरकारी व्यवस्थाएं साल के 12 महीने किसानों की फसलों की खरीद के लिए बनाई जाती हैं? क्यों सिर्फ फसल के वक्त में 1 महीना 1.5 महीना सरकारें कुछ लोगों का खरीदती हैं, उसके बाद में आम आदमी अपना अनाज तो बेच ही नहीं पाता वहां जाकर के? बिल्कुल गंभीर सवाल पूछा है आपने। स्थिति यह है, गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ये फुट एंड माउथ डिसीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। And if we have created such a healthy, राहुल लाल जी इस बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद में पशुपालन और मत्स्य योजना पर आएंगे। देखिए, सरकारों के प्राथमिकता में कृषि क्षेत्र होता नहीं है, और जब कृषि क्षेत्र के मामले पर आप कुछ घोषणाएं करते हैं तो घोषणाओं में भी प्रदर्शनात्मक व्यवहार ज़्यादा होता है। जो कि पहले भी, आज भी देखा हम लोगों ने कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कई तरह की पुरानी उपलब्धियां भी कृषि क्षेत्र में गिनती करा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां क्या रही? देखिए, 2016-17 के बजट में किसानों के आय को डबल करने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% की योजना की आवश्यकता थी। अगर हम लोग पूरे सरकार के कार्यकाल को देखते हैं 2014 से 19 के बीच में वो 2.5% से ज़्यादा कभी नहीं गया।
पिछले साल भी लगभग 2% के आसपास रहा। यानी हम लोग एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को 2 से 2.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। इसका मुख्य कारण यही है कि वो सरकारों के प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं रहा। अगर प्राथमिकता क्षेत्र में होता तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए जो अलग अलग पैकेज, ये राहत पैकेज क्या ये बता रहा है कि अब सरकारों की प्राथमिकता के में लाने के लिए एक दिशा दिख रही है? देखिए, नीतिगत रूप से तो दिख रही है, इसमें मैं मानूंगा। जैसे कि अगर सरकार कह रही है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन बनाएंगे, और यही एक बिंदु की नीतिगत तरीके से तो चीजें दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बस खाली एक लाइन में बोलूंगा, लाभ, उसका असर कितना मिलता है वो बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है आपके हिसाब से। मगर मछली पालन मत्स्य संपदा योजना को लेकर के जिस किस्म से घोषणा की है अमलेंदु उपाध्याय जी, हालांकि इस सेक्टर पर सरकारों ने बहुत ज्यादा पहले ध्यान नहीं दिया, ये एक सरकार की नई पहल के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस महामारी के दौर में इस घोषणा से क्या फायदा मिलेगा? नहीं, ये आत्मनिर्भर और लोकल का वोकल कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री का जो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत और लोकल को वोकल, तो ये मत्स्य उत्पादन जो है ये किस तरीके से लोकल को वोकल करेगा? मतलब आप एक तरफ जो है कहेंगे कि हम जो है स्वदेशी खरीदेंगे और हम अपना सामान जो दूसरे मुल्कों में बेचेंगे, तो यानी दूसरे मुल्क नहीं करेंगे फिर अपने आप स्वदेशी। तो ये मतलब नीतिगत जो है, असल दिक्कत नीतिगत भी है, ऐसा नहीं है कि नीतिगत जो है वो अच्छी है। पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढांचा के लिए ये विकास फंड बनाया गया है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा गया। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए, स्थानीय मार्केट के लिए, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। I move from here to the 15,000 करोड़ रुपयों का फंड पशुपालन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचों के लिए। तो अभी बुनियादी ढांचों की स्थिति है ही क्या देश के अंदर? अभी तो कुछ देख नहीं पा रहे राहुल लाल जी। नहीं, बुनियादी ढांचे बिल्कुल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जब्बार साहब की, ये जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं कि डेयरी प्रोसेसिंग में 15,000 करोड़, तो अब ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये 15,000 करोड़ बिल्कुल एक पैकेज के रूप में है, या फिर ये भी उन लोगों को लोन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, दुनिया भर में इस समय कोविड को लेके पैकेजेस की घोषणा की जा रही है। वो पैकेज का मतलब ही होता है फ्रेश मनी वहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल वो आबादी के रूप में आप सरकार सपोर्ट कर रही है। अलग अलग जैसे वहाँ पे कर्मचारियों को अगर कंपनियां वेतन नहीं दे पा रही हैं, तो वो वेतन देने का काम वहाँ की सरकारें वो जिम्मेवारी उठा रही हैं। हम लोग अगर कल्पना करें भारतीय संदर्भ में, तो यहाँ के जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, जिनको फैक्ट्रियों ने निकाल दिया, तो उनको अभी उनका भरण पोषण का जिम्मेवारी सरकार ले लेती। तो ये आपातकालीन स्थिति है। इस समय हम लोग सामान्य अर्थव्यवस्था के वाले व्यवहार हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हमारा आधारभूत ढांचा काफ़ी कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको अगर इस बहाने भी आप निवेश करते खुल के, जैसा कि हम लोग को प्रथम दृष्टया नज़र कहीं से भी नहीं आ रहा है। और मैं अमलेंदु जी की इस बात से सहमत हूँ कि नीतिगत आधार पर भी कई सारे जगह पे कंट्राडिक्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्वदेशी का नारा लगाएंगे, तो दूसरे देश भी फिर उसी तरह का नारा लगाएंगे, तो आपके लिए मार्केट ऑप्शन खत्म होंगे। तो बहुत ज़्यादा आज जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में रह रहे हैं, तो इस तरह के नारे को भी हम एक सीमा तक ही रख सकते हैं अपने आंतरिक आत्मविश्वास के लिए। एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को सुनते हैं। कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा, और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी, इसकी कल्टीवेशन होगी। 10 लाख हेक्टेयर लगभग 25 लाख एकड़ के बराबर है, और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। और यही नहीं, जन औषधि का बहुत महत्व भी है, और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस कोविड-19 के समय में भी दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी, इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा, और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी।
I move to the seventh of the 8 items which I want to. समझना चाह रहा था कि पशुपालन को लेकर के या फिर डेयरी प्रोसेसिंग को लेकर के अब अभी तक देश की जो स्थिति है उसमें ये बजट किस तौर पर काम करेगा और कितना इसमें समय लगेगा अभी तो? नहीं, देखिए, ये जो उद्देश्य अगर सफल भी होंगे तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार के। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी एक तरह से हम लोग एक आपदा की स्थिति में हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर के अभी क्यों चल रही है? क्या अभी मौजूदा वक्त में या हम लोग इसको समझ नहीं रहे हैं या उस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं? जवाहर साहब, खाली एक पॉइंट में कहूंगा कि अभी फुट एंड माउथ रोग के बारे में जो उन्होंने घोषणाएं की, ऐसा नहीं कि आप अगर पिछले 10 सालों के बजट को आप देखें, अलग अलग सरकारें हैं, जो पहले की सरकार नहीं, अभी की सरकार नहीं, उसके लिए प्रावधान होते रहे हैं इस रूप में। तो ये ऐसा नहीं कि आज सरकार अचानक से कुछ लेके आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीजें हैं, नए पैकेजिंग के साथ उसको केवल प्रस्तुत करके सामने में रखा जा रहा है। समस्या सरकार की है कि सरकार के पास फंड नहीं है। सरकार ने 5 लाख करोड़ के आसपास तो जो है कि उन्होंने पहले बजट के प्रावधानों के अनुसार उनको 6.8 लाख करोड़ रुपया उनको कर्ज लेना था। अगर आरबीआई और अलग अलग पेपर्स को देखते हैं तो वो कर्ज की राशि को अब सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपया किया है। तो सरकार ने मुश्किल से 5 लाख करोड़ के आसपास वो इंतजाम कर पाए हैं। लेकिन चूंकि इसमें आरबीआई के द्वारा जो घोषणाएं हुई या अलग अलग जो लोन्स दिए जा रहे हैं, उन सबों को जोड़ के ये 20 लाख करोड़ का एक बड़ा सा जो है कि वो छतरी एक हम लोग बनते हुए देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी भी सरकार से डिमांड करूंगा कि ये सब आपके लॉन्ग टर्म के प्लान बहुत अच्छे हैं, कम से कम कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाते हैं, उस राशि को 2000 से कम बढ़ा के उसको 8000 कर दें, जिसमें 18,000 करोड़ रुपये आपने पहुंचाया है, लेकिन वो अभी इसमें काफी अपर्याप्त है। ठीक है अमरिंदर जी, अब ऐसी स्थिति में चूंकि ये आज आखिरी और तीसरी किस्त है और इसके बाद में क्या खोया, क्या पाया या क्या मिला, अब खुदा पहाड़ निकला क्या, वो सारी की सारी चीजें अब अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान इस पर चर्चा और विश्लेषण लगातार कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। और इसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। और यही नहीं, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि आधारित जो मधुमक्खी पालन, ये उनका आय का एक अतिरिक्त साधन भी होगा। जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी एक अवसर है। लोकल से ग्लोबल, उस दिशा में भी इसका एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है कि ना केवल लोकल मार्केट के लिए, इसको निर्यात के लिए भी एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है। I move to the next, the last in this list of 8. अब हर्बल खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जा रही है, तो हर्बल खेती का पैमाना देश में अभी कितना है, किस स्तर पर यह खेती होती है और इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसका फायदा कितने लोगों को पहुंच रहा है, इसको आम जनता कैसे समझे? नहीं, आम जनता कैसे समझेगी? सबसे पहली बात तो ये कि अवैज्ञानिक बात जो अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं कि मेडिकल जो प्लांटेशन जो है उसने जो है कोविड-19 से लड़ाई में दुनिया ने बड़ा फायदा उठाया है। अरे अभी तक कोविड-19 की कोई दवा नहीं निकली है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कहाँ से मेडिकल प्लांटेशन ने फ़ायदा पहुँचा दिया? पर इतनी अवैज्ञानिक बातचीत नहीं करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री को, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। ठीक है, मेडिकल प्लांटेशन की अपनी महत्ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कोविड-19 में महत्ता अभी साबित हो गई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारा आयुष मंत्रालय जो है वो मगर वो भी ये नहीं कह रहा है कि महत्ता उसकी बात कर रहे हैं कि जो कोशिशें उस विभाग की तरफ से की जा रही हैं और उसमें जितनी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, वो उसको एक कामयाबी की शक्ल में परोसने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो कोशिश अच्छी बात है, कोशिश करते रहे। मेडिकल प्लांटेशन बड़े अच्छी चीज़ है और आयुर्वेद का प्रचलन बड़े अच्छी बात है, लेकिन ये कह देना कि दुनिया में जो है मतलब उसका फ़ायदा हुआ है मेडिकल प्लांट्स का इस कोविड-19 की लड़ाई में, तो ये चीज़ गलत है। जो अभी मैंने सुना जो वो कह रहे थे कि मेडिकल प्लांट्स का जो उसको कोविड-19 की लड़ाई में फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है। और अच्छी चीज़ है मेडिकल प्लांटेशन हो, बहुत अच्छी बात है। का प्रावधान किया गया है। ये पहले अगर देखा जाए तो टमाटो, ऑनियन और पोटैटोज़ के लिए दी जाती थी कि आपके लिए टमाटर, प्याज, आलू इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब इसको बाकी सब के लिए भी संकट की घड़ी में, जब कोविड-19 के समय, इसको 6 महीने के लिए एक पायलट के रूप में देखा जाएगा और इसकी सफलता को देखकर इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, इससे बल ये मिलेगा कि जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे, खरीदे नहीं जाते थे या किसान को दबाव में आकर कम मूल्य पर बेचने पड़ते थे, तो उसकी कमाई भी उससे कम होती थी
और नुकसान भी होता था। अब इससे किसान को लाभ मिलेगा और ना केवल इसको टमाटर, प्याज और आलू तक सीमित रखा गया है, बाकियों को भी, इसको बाकी फल और सब्जियों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। इसमें 50% सब्सिडी जो है वो माल भाड़े पर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर दी जाएगी और 50% सब्सिडी जो है वो स्टोरेज, अगर भंडारण करना होगा तो उसके लिए, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में भी रखना होगा तो उसके लिए भी 50% सब्सिडी इसमें दी जाएगी, ताकि वो अच्छे दाम पर समय आने पर बेच सके। I move over to speaking. अब ये बात है राहुल लाल जी, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए, कितने लोग गांव के, देश के कितने लोग ऐसे होंगे जिसमें जुड़े हुए होंगे और कितने स्तर पर, किस स्तर पर इसका फायदा लोगों को मिल सकेगा? नहीं, देखिए, मधुमक्खी पालन से कृषि क्षेत्र में एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मधुमक्खी पालकों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला था, वो लोग चाह रहे हैं कि उनके कर्जे जो पहले के हैं वो माफ़ हो चुकी। देखिए, अभी इस समय लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा उनके सेहत बर्बाद हुए हैं, मौसम भी जिस तरह से जो है कि मौसम की मार भी पड़ी है, तो ये कई तरह के उनके ऊपर मुसीबतें कृषकों के ऊपर पड़ी हैं। तो चाहे वो मधुमक्खी पालन हो या दूसरे अलग अलग जो दूसरे व्यवसाय के लोग हैं, इन सबों की जो अपनी इच्छाएं हैं वो सरकार से ये फरियाद कर रहे थे कि हमारे पुराने लोन बिल्कुल माफ़ कर दिए जाएं और कम से कम इस समय आप, इस सरकार का तो कहना ये कि साहब हम कर्ज माफी के में विश्वास नहीं रखते, हम चाहते हैं कि वो खुद सक्षम हो जाएं ताकि उनको कर्ज ना लेना जब्बार साहब, तो इसके लिए ये कंट्राडिक्शनरी बात है ना कि कर्ज तो आप लगातार उनको लेने के लिए मजबूर कर रहे हो या प्रेरित कर रहे हो? नहीं, ये तो फिर आप कर्ज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसान तो हमारे काफी आत्मविश्वासी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि चलिए आप कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको 5 साल के लिए ब्याज ही माफ कर दीजिए। हमें अगर कर्ज दे रहे हैं तो ब्याज मुक्त कर दीजिए आप, कि केवल हम मूलधन वापस करने की स्थिति हो। लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति है कि किसान बिल्कुल लगातार बाध्य हो रहा है। ये पूरी घोषणाएं आपको टीवी स्क्रीन पे सबों को देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा भी ऑपरेशन करके जब हम लोग इसको देख रहे हैं, ये इस समय के महामारी के स्थिति में ये बिल्कुल ही अपर्याप्त है। इनको चाहिए था कि उनको डायरेक्ट जो है कि उनको नगद राशि उनको उपलब्ध कराते और वहाँ से परचेजिंग पावर की कैपेसिटी बढ़ती। चूँकि देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी तभी जब आप मांग को आगे बढ़ाएंगे। मांग अगर जनरेट नहीं होगा तो आप बताइए अर्थव्यवस्था की पहिया कैसे घूमेगी? अगर आप इंडस्ट्री उत्पादन कर भी ले और उत्पादन करे और उसका उत्पादन कहीं बिके ही नहीं, तो फिर तो हमारा ग्रोथ तो बिल्कुल रुका हुआ होगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया अमरिंदर जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि असल में जितनी भी घोषणाएं की जा रही हैं और जो भी पैकेज के नाम पे जो कुछ कहा जा रहा है, वो असल में ये मान के दिया जा रहा है कि अब कोविड-19 जो हमारे लिए कोई समस्या नहीं रही, जबकि हमारे लिए कोविड-19 जो है एक बड़ी समस्या है, हमारे लिए सारी दुनिया के लिए समस्या है। और आगे आने वाली दुनिया का स्वरूप जो है आज से 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद क्या होगा, ना हम जानते हैं, ना मोदी जी जानते हैं, ना ट्रंप जानते हैं, कोई नहीं जानता है कि परिस्थितियां जो है किस करवट बैठेंगी और किस मोड़ पे जो जाके अर्थव्यवस्था बैठेगी और किस मोड़ पे जाकर के हालात जाके बैठेंगे। तो ऐसे में अभी से आपको ये घोषणाएं करना कि हम ये करेंगे वो करें, सबसे पहली बात थी कि लोगों को खाने को मिले, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, इस पर बातचीत होती और इस पर सरकार जो था वो अपने संसाधनों को लगाती। किसी को कोई भूखा ना सोने पाए, इस पे सरकार जो थी वो खर्च करती। लोगों की, जब आप उत्पादन करेंगे और अगर बिकेगा नहीं, क्रय शक्ति कहाँ से बढ़ेगी? क्रय शक्ति शहरों के अंदर जो रोजगार खत्म हुआ है और जो प्रवासी मजदूर जो लौट के अपने घर को गया है, तो ये सारा स्किल्ड लेबर है। जो महानगरों से लौट के जा रहा है ये सारा स्किल्ड लेबर है। तो आप समझ लीजिए कि महानगर जो है स्किल्ड लेबर से खाली हो गए। जो मौजूदा वक्त में जो नीतियां बनी हैं, जिसको बनाया गया, उसको सही स्तर पर और बुनियादी तरीके से उसको सोचने समझने की जरूरत थी, ताकि उसकी दिशा और दशा कुछ और होती। निश्चित तौर पे अभी हमारे सामने समस्या थी वो कोविड-19 थी। पहले यह था कि किस तरीके से हमारी आबादी सुरक्षित रहे, किस तरीके से हमारे कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे, जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं,
या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस समय में, और जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट ना हो जिससे कि उनके कामकाज में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वैल्यू चेन में भी कोई उसका नुकसान ना हो और निर्यात करने वालों को भी कहीं पर दिक्कत ना आए। We move to the second. लेकिन राष्ट्रीय आपदा और सूखा समय में सरकार समय समय पर कदम उठा सकती है। थैंक यू। Sorry. एनएमपीबी के लिए 4000 करोड़ रुपए और इसी तरीके से सप्लाई चेन के लिए 500 करोड़ रुपए अब इस वक्त घोषणा के तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण के जरिए आप सुन रहे हैं। मैं इसी बात को अमलेंदु जी समझना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके से या दोनों लोग जिस तरीके से इन घोषणाओं को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, क्या सरकार ने जमीनी स्तर पर उन चीजों को देखकर समझ करके ये योजनाएं मौजूदा वक्त के हिसाब से तैयार नहीं की या तैयार की हैं, उसको अभी धीरे धीरे समझा जा सकेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़मीनी तौर पर उन्होंने देखा या नहीं देखा, ये तो वो सरकार बता सकती है कि उन्होंने ज़मीनी तौर पर देखा या नहीं देखा। लेकिन जो जिस तरीके से पैकेज सामने निकल के आ रहा है वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि अभी हमारे सामने जो मौजूदा हालात हैं उनसे निपटने के लिए हमारे सामने अभी कोई जो है रोड मैप नहीं है। ये जो भी रोड मैप आ रहा है वो या तो पिछला निकल के आ रहा है कि हमने पिछले में क्या किया और आगे जो है हम क्या करेंगे। मैं फिर कहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है वो देश के सामने वो कोविड-19 से निपटने की है, इस बीमारी से निपटने की है। उस बीमारी से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये जो था इस समय महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए थी कि हम अपनी आबादी की सुरक्षा जो है किस तरीके से करेंगे, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा, उसके हम भोजन की व्यवस्था हम किस तरीके से करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो होनी चाहिए थी और सबसे ज़्यादा खर्च जो था इन्हीं दो चीज़ों पे होना चाहिए था। अभी तक सरकार ने ये कोई घोषणा नहीं की कि कितने नए अस्पताल खुलेंगे, कितने नए डॉक्टरों की भर्ती होगी, कितने नए पीपीई किट्स आएंगे, कितने नए मास्क आएंगे, कितने नए वेंटिलेटर्स आएंगे। ये सब घोषणा अभी तक हमें देखने को नहीं मिली, जबकि इस समय आवश्यकता इन्हीं चीज़ों की थी कि हम आगे आने वाले समय की तैयारी करें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में स्वास्थ्य महकमों को लेकर के कोई बड़ी घोषणा सरकार कर दे? आपके मुंह में घी शक्कर, हम तो चाहते हैं कि ये घोषणा हो। मगर राहुल लाल जी, ये कितना ज्यादा इनसेंसिटिव होगा अगर इस बीच में स्वास्थ्य महकमे को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात नहीं की जाती। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कदम उस दिशा में उठाए भी जा रहे हैं ताकि किसान या कृषि क्षेत्र एक अकेला ऐसा देखा जाता है जहां पर लाइसेंसी जो है उन्हीं को उनको सामान बेचना है, एपीएमसी के माध्यम से बेचना है, जिनके पास बाकी लाइसेंस है वहां तक सीमित रहना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जो पिछला हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कही और अभी इस कदम की बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। इस देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के कारण। The last of governance and administrative related reforms today. देखिए, स्वास्थ्य को लेकर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जी आखिरी स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि देश में अगर इसमें हम लोग देखते हैं WHO के आंकड़ों के अनुसार 1000 की आबादी पे एक डॉक्टर होनी चाहिए। भारत में 12000 की आबादी पे एक डॉक्टर है। उत्तर भारत के राज्यों में लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी पे एक डॉक्टर है उत्तर भारत में। ऐसे स्थिति में जो 10 लाख डॉक्टर हैं उसमें से भी 8.5 लाख डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इसमें कोविड के लड़ाई में खुल के सामने भी नहीं आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं तमाम तरह के सरकार भले दावे कर लें, वो अपने क्लिनिक बंद करके बैठे हुए हैं। 1.5 लाख, और इसीलिए सरकारों को ये फैसला लेना पड़ रहा है कि आप लोग क्लिनिक खोलिए, अगर वहां कोई कोरोना का मरीज पाया जाता है तो कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूं, आप सारी लड़ाई 1.5 लाख केवल डॉक्टरों के आधार पर लड़ रहे हैं। स्थिति ये है, भारत में लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप केवल कितना खर्च करते हैं? अपने जीडीपी का 1.15% से लेके 1.5% तक हम लोग खर्च करते हैं।
और उसका नुकसान अभी ये हो रहा है कि अलग अलग राज्य सरकारें अब झोला छाप डॉक्टरों का भी लिस्ट बना रही है। डॉक्टर तो हैं ही, डॉक्टरों की कमी कम से कम इसमें 8 लाख डॉक्टरों की कमी है देश में। और स्वास्थ्य कर्मी जो कि डॉक्टर के सपोर्टर हैं वो लगभग 30 लाख की उनकी वैकेंसीज वो खाली पड़ी हुई है देश में। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी देश में 1200 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए थे, लेकिन अभी 502 मेडिकल कॉलेज हैं। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 2022 तक में देश में 75 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे। जब देश अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा होगा तब भी आपके मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कहाँ पहुंचेगी? 502 में 75 और जोड़ दीजिए, 577 2022 में। लेकिन आपकी जरूरत है आज के आबादी के हिसाब से 1200 है मेडिकल कॉलेजेस। तो इसलिए हमारा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। इस समय सरकार को इस पूरे पैकेज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर देना चाहिए था। शायद हो सकता है कि आपकी उम्मीद सही निकले कि लास्ट में वो घोषणाएं हों, लेकिन ये इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। जहाँ पे बचा की बात सरकार एग्रीकल्चर क्षेत्र पे ध्यान दे रही है। इस सरकार ने इस तरह के दावे 2016-17 में बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हमने बताया कि वो हमारा ग्रोथ रेट 2.5% से ऊपर हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। तो अंततः चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना हो या तमाम योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी वो जमीन पे लागू होकर परिणाम देने में असफल रहे। सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, एश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए, जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो हैं उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो। इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले, और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है। Thank you. I've completed my today's. Friends, we can take some questions. लेकिन अपने तो ले दे करके भी इन सारी चीजों को आज अनाउंसमेंट के शक्ल में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 लाख करोड़ रुपयों को लेकर के जिस राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए उस राहत पैकेज की डिटेलिंग 3 दिन तक लगातार फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से और अनुराग ठाकुर की तरफ से उसकी डिटेलिंग दे दी गई। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, ई टेंडरिंग से लेकर के किसानों सारी चीजें आ गई, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के या जिन अस्पतालों को लेकर के आप 1200 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, महज 500 मेडिकल कॉलेज हैं, प्रति 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहां पर भारत में किस तौर पर स्थिति है मौजूदा वक्त की, ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त है, क्या देखा जाए? प्राथमिकता में है ही नहीं सरकार की, या प्राथमिकता में है तो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में ही सरकार बहुत अच्छा बस फील गुड करा रही है? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की जो स्थिति है वो मैं समझ पा रहा हूं। सरकार के पास इस समय पैसे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सरकार एक तरह से भारी, एक तरह से वित्तीय संकट से जूझ रही है। सरकार तो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं ना, वो तो कहती भी नहीं इस बात को खुल करके कि साहब अभी हमारा खजाना खाली है। नहीं, मैं खजाना खाली है, आरबीआई से हमें लेने पड़ रहे हैं। न जाने कितनी स्कीमों को आरबीआई ने अपने हिसाब से कुछ ऐसे रियायतें दी हैं जो कि सरकार इस वक्त अपने आंकड़ों में शामिल कर रही है, जोड़ रही है। नहीं, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो जनता को खुल के बता दे। हम लोग जानते हैं, अगर मुझे आप कहें कि उनके सारे आंकड़ों को मैं देख रहा हूं, उनके पास ये फिगर्स नहीं है जो वो जनता को वो दे सके। वो तो अब फिगर्स है नहीं, अगर नहीं तो केवल 1 महीने के आप अगर जो अभी कोविड का समस्या आए हुए हैं, और इस समय सरकार को अगर सरकारी कर्मचारियों के एक तरह से डीए को फ्रीज करने की स्थिति आ जा रही है। मगर जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि क्या पता आखिरी हिस्से में इस सेक्शन के स्वास्थ्य महकमे को लेकर के या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के निर्मला सीतारमण कोई बड़ा अनाउंसमेंट करें, हुआ तो नहीं। वैसी कोई घोषणा नहीं दिखी, जबकि वो होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर है। अभी हमें कोविड की लड़ाई लड़नी है तो किसके द्वारा लड़ेंगे? कोविड की लड़ाई हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लड़ेंगे। बहुत मुश्किल है, निचले स्तर पे आपके यहाँ पे बिल्कुल ही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं।
ना डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य कर्मी है। फिर ये लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। इसलिए देखिए, इसी कारण से नारे में परिवर्तन आया नंदू जी कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, या सरकार की प्राथमिकता नहीं रही होगी कि स्वास्थ्य महकमे को लेकर के कुछ किया जाना चाहिए, तो फिर इन अनाउंसमेंट में वो शामिल ना होना क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जो है, जैसा मैं पहले भी कहा, मुझे लगता है कि सरकार ये मान चुकी है कि अब कोविड-19 जो कोई समस्या है ही नहीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में आखिर में सबको बधाई दी कि बधाई मित्रों, तो वो बधाई किस बात की बधाई थी, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि बधाई हम किस बात के लिए। दुनिया, भारत जो है, मगर WHO की चेतावनी भी बार बार आ रही है कि कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि साहब आपको ताउम्र जीवन भर इसके साथ आपको जीना सीख लेना चाहिए। नहीं, ताउम्र की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, आप WHO की बात छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने एम्स के डायरेक्टर का भी 4-5 दिन पहले आया वो बयान देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि जून और जुलाई में जो है बहुत तेजी से इसका विस्फोट होगा कोरोना, हो सकता है जी, है ना, हो सकता है। और उसकी हमारी तैयारियां क्या है? हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता है कि नहीं साहब महामारी नहीं होगी, उसके 2 दिन पहले एम्स के डायरेक्टर ये कहते हैं कि नहीं साहब जून जुलाई में बड़ी महामारी हो सकती है। तो ये कंट्राडिक्शन जो दिख रहा है स्वास्थ्य महकमे से लेकर के एम्स की तरफ से, कैसे इसको देखें फिर? नहीं, देखिए, इसको ऐसे देखें कि असल में जो हमारे स्वास्थ्य महकमे हैं, चाहे वो एम्स हो या कुछ है, तो वो अपनी पहले जो है अपनी पेशेगत जिम्मेदारियां जो हैं उस दायित्व उसको निभाते हैं, लेकिन जब सरकार आती है तो वो अपना जो है राजनीतिक एजेंडा निभाती है। तो इसलिए जो है ये कंट्राडिक्शन हमको दिखाई पड़ते हैं। जब एम्स का डायरेक्टर बोलता है तो वो एम्स के डायरेक्टर की हैसियत से बोलता है कि उसकी जो है राष्ट्र के प्रति और अपने पेशे के प्रति क्या जिम्मेदारी है, और जब स्वास्थ्य मंत्रालय जब विज्ञप्ति जारी करता है तो वो सरकार का राजनीतिक एजेंडे के तरीके से बात करता है। तो इसलिए जो है ये जो कंट्राडिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, हालांकि ये कंट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए थे। ऐसे गंभीर समय में सरकार को भी थे वो राजनीतिक एजेंडे उठाकर रख देने चाहिए। देखिए, सबको मालूम है कि सारी दुनिया में संकट है, और ये संकट केवल हमारा नहीं है, सारी दुनिया का संकट है, और सारी दुनिया में सरकारें इससे जूझ रही हैं, अकेले हम नहीं जूझ रहे हैं, है ना। तो अगर हमारी कमजोरियां आएंगी भी, मान लीजिए सरकार की कमजोरियां आती भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार है तो कमजोरियां होंगी, तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? दूसरे लोग भी तो अपनी कमजोरियां एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये समस्या पहले से जानी पहचानी नहीं थी और एकदम से आगे पड़ी है और इससे निपटने का किसको तरीका नहीं मालूम है, तो उससे निपटने के रास्ते में गलतियां भी हो सकती हैं और अच्छाइयां भी हो सकती हैं। तो हमको जो है वो खुले मन से दोनों चीज़ों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जो है खुला मन जो है उसकी शायद जो है वो कमी सरकार के अंदर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मगर तीनों दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है इस वक्त। हालांकि अभी निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर हैं, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब देने, यानी कि जो अनाउंसमेंट की जो पूरी अवधि थी, वो जितने अनाउंसमेंट किए जाने थे सारे के सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अब ऐसे में क्या मिला, और इस पैकेज से 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से जिसके 3 दिनों के भीतर डिटेलिंग दी गई है, इससे स्थिति कितनी बेहतर होने जा रही है? मुश्किल पर या जख्म पर कितना मरहम लगेगा? राहुल लाल जी, देखिए, इससे हम लोग इस मामले के तात्कालिक समस्या के समाधान पे काफ़ी कम जोर दिया गया और इस आंकड़े को काफ़ी बढ़ाया गया है। इसको मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, आरबीआई के ऑपरेशन से, और आरबीआई के ऑपरेशंस भी अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। इसको इसलिए मैं समझाना चाहूँगा दर्शकों को कि देखिए, मार्च में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की, फिर अप्रैल में भी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की, उसके पहले फरवरी में भी की गई थी। सरकार ने एक तरह से उसके द्वारा कम से कम उसमें कहा गया कि 8.5 लाख करोड़ रुपया मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो वो आप किसी को कोई राहत नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लिक्विडिटी भी इस समय मार्केट पे नहीं आई है। वो पैसे भी अभी आरबीआई के पास है। एक उदाहरण देता हूं, और वो आने में कभी एक लंबा वक्त उसमें लगेगा। नहीं, उसी में मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूं कि देखिए, रिवर्स रेपो रेट को 2 बार घटाया गया। रिवर्स रेपो रेट एक तरह से वो ब्याज दर है जिसके आधार पे रिजर्व बैंक जो है कि अपने दूसरे बैंकों को लोन इंटरेस्ट देती है। तो रिजर्व बैंक ने ये समझा कि हम अगर उसको कम कर देंगे इंटरेस्ट रेट को, तो ऑटोमेटिक ये बैंक यहाँ ना पैसा रख के ये उपभोक्ताओं को जो है कि वो लोन बांटेंगी। लेकिन बैंकों को ये लग रहा है कि जमीन पे अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खतरनाक है। उनको लग रहा है कि अगर हम देंगे तो हमारा एनपीए हो जाएगा, इसलिए बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे भी आरबीआई में रखने के लिए तैयार है। इस समय भी आरबीआई के पास बैंकों ने 8.5 लाख करोड़ रुपया रखे हैं, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि वो पैसे मार्केट में है। तो आप प्रथमतः तो जो आपके बुनियादी उद्देश्य हैं वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और उस असफल उद्देश्य की भी गिनती आप अपने इस जो पूरा का पूरा 20 लाख करोड़ है उसमें आप डाल दे रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। तो एक तो ये एक पूरे मामले में हम लोगों को दिख रहा है। मुख्य रूप से हम लोग अभी भी हम लोगों को नहीं पता कि अलग अलग जो राशियां सरकार ने घोषित की हैं वो क्या उस पुराने परंपरागत 30 लाख करोड़ का बजट का हिस्सा है,
या फिर सरकार ये बिल्कुल एक फ्रेश मनी दे रही है, लोन भी नहीं हो, बिल्कुल फ्रेश मनी कहां से लाएगी सरकार? के पास में तो पैसे जाहिर तौर पर दिक्कत है। अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए उस बजट से हट करके सरकार लाने जा रही है तो ये तो पॉसिबल तो लग नहीं रहा है। नहीं, तो अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल खुल के अपनी सारे स्थितियों को बताना चाहिए। देश इस समय संकट की स्थिति में फिर भी आपके साथ खड़ा होगा। आप प्रधानमंत्री जो भी आह्वान करते हैं लोग खड़े होते हैं, उनको बताना चाहिए कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है और हमारे पास नहीं हो, हम संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अमलेंदु उपाध्याय जी, अब सीधे सीधे कट टू कट बात करते हैं कि अब इन लोगों को, इन विभागों को मिला क्या है? एक आम किसान, एक ऐसा किसान, क्योंकि देश के करीब करीब ज्यादातर सबसे बड़ा जो विभाग है या सबसे ज्यादा लोग हैं कृषि से जुड़े हुए हैं, उसमें से भी 85% के आसपास जो छोटे किसान हैं वो हैं। किसानों के लिए जितने सारे ये आंकड़े की बाजीगरी, जादूगरी दिखाई गई है, सीधे सीधे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको डीजल पर सब्सिडी दी जाती, उनकी एमएसपी मौजूदा वक्त में बढ़ा दी जाती है कि गेहूं की फसल या फिर रबी की फसल, गेहूं की कीमत हम 2200-2500 रुपए कर रहे हैं। शायद ये उनके लिए एक बड़ी राहत होती, उनको एक बड़ा फायदा मिलता, बजाय इसके कि ये सारी चीजें की गई है। आम गांव का किसान वो इस राहत के पैकेट से उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसको फायदा मिला क्या है। नहीं, ना उसको समझ में आएगा और ना मिलेगा, मतलब दोनों चीजें हैं, ना तो समझ में आएगा ना उसको कुछ मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने भी जैसे पहले कहा कि असल में इस समय सीधे सीधे किसान को सीधी राहत जो थी वो दी जाने की आवश्यकता थी। डीजल पे दाम किए जाने थे। आप देखिए हमारे यहाँ तो जो है डीजल पे और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए गए। हमारा पड़ोसी जो खराब मुल्क है पाकिस्तान, घटिया मुल्क जो है, वहाँ डीजल पे 15 रुपया कम कर दिया गया इस संकट के दौरान। तो आप ये पर अब ऐसे में सवाल तो लोगों के मन में तो यही है कि 2014 के पहले अगर कितना हाई था कच्चे दामों की कीमतों का, $140 प्रति बैरल, 140-150 के आसपास था। $140 पे बिका था, तभी उसके तेल के प्राइस वही थे जो आज हैं। तेल के प्राइस वही, तेल का कोई मूल्य नहीं, आज पानी से सस्ता है। आज $30-25 प्रति बैरल के आसपास में अब तक पहुंचा है, लेकिन कीमतें वही हैं। और ऐसे में आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए आप कीमतों को घटा नहीं रहे हैं, तो विश्वास, आप कह रहे हो कि सबका साथ सबका विश्वास, कैसे सबका विश्वास पैदा होगा? सबसे बड़ा बात यह है कि किसान ने ठीक है उत्पादन कर लिया, किसान तो उत्पादन कर लिया। देखिए सारी अर्थव्यवस्था जिस समय ठप पड़ी हुई थी, सारे कारखाने बंद थे, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा था, उस समय उत्पादन सिर्फ किसान कर रहा था। किसान की फसल जो थी वो तैयार हो रही थी, ओला पड़ा, बारिश पड़ी, उसमें नुकसान हुआ, उसके बावजूद जो थी उत्पादन जो था सरकार तो किसान का हुआ। और वही किसान जो है करके उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही किसान जो है हमारी सरकार की नीतियों में से गायब है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर रहे हैं, मगर किसान की फसल कैसे उत्पन्न पैदा होगी, उसको बीज कैसे मिलेगा, उसको पेस्टिसाइड्स कैसे मिलेंगे, सिंचाई के उसके साधन क्या होंगे, इस पर कोई बात नहीं है। और देखिए आप 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, मगर अभी जो एक 1.5 महीने के बाद बाढ़ का सीजन शुरू होने जा रहा है, उस बाढ़ राहत पे आपकी क्या तैयारियां हैं ये भी बता दीजिए। राहुल लाल जी, अब सवाल ये है कि अगर सिलेंडर को सब्सिडाइज किया जा सकता है, आम लोगों के सिलेंडर को, किसानों के लिए, और किसानों के उस सेक्शन में 85% छोटे किसान हैं, तो उनको डीजल की प्राइसिंग में उनको सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, उनको खाद और दूसरे या किसी तरीके से राहत क्यों नहीं पहुंचाई सकती, या उनके फसल को उचित मूल्य पर एमएसपी सही करके उस पर खरीदारी क्यों नहीं होती है? देखिए मैं जब्बार साहब यही कह रहा हूं कि डीजल को सस्ता करना है। डीजल को सस्ता करने के लिए आपको कोई सब्सिडी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये करना है कि टैक्स हटा देना है उसको। हटाना भी नहीं है, आपको अगर सिर्फ किसानों के लिए जो आपने पढ़ाया है उसको कम कर देना है, बस बढ़ाया जो उसको किसानों को दे दीजिए। तो किसानों के लिए साहब आपको डीजल हम सस्ते में दे रहे हैं। देखिए रियल स्थिति यह है कि ये जो बजट, जो घोषणाएं देख रहे हैं, ना तो इसमें किसानों के लिए कुछ है, ना मजदूरों के लिए कुछ है, ना तो मध्य वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। चूंकि देखिए आप अगर बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए आप डिस्कॉम में दे रहे हैं, क्या बिजली कंपनियों ने वो इस तरह का कोई राहत अपने उपभोक्ताओं को दिया? आखिर अगर वो घाटे में चल रही थी क्यों चल रहे थे? उपभोक्ता तो लगातार जो है कि बिजली का पेमेंट कर ही रहा था। किसानों को भी यहाँ में एक बात और जोड़ जाऊंगा कि जो डिस्कॉम है जो घाटे में चल रही है वो कोविड से पहले से चल रही है, पहले से और उनके मुकदमे अदालतों में पड़े हुए हैं, उनके मुकदमे अदालतों में पड़े हुए पहले से। आप उनको जो दे रहे हैं 90,000 करोड़ रुपया, और फिर उसे आप 3 लाख करोड़ में शामिल कर रहे हैं, और फिर आप बता रहे हैं कि 45 लाख जो है छोटे एमएसएमई जो है आप उनको लोन में भी शामिल कर रहे हैं। तो यानी ये आंकड़ों की बाजीगरी किस तरीके से होगी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर किसानों की स्थिति क्या ऐसे ही रहेगी, या फिर आगे इन घोषणाओं के बाद में उनको किसी किस्म का दूसरा पहलू जो फायदे वाली है, किसी किस्म का कोई फायदा पहुंचता हुआ आप देख पा रहे हैं राहुल लाल जी?
नहीं देखिए, मुझे नहीं, सरकार का जो नजरिया है, सरकार जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या उनके नजरिए से अगर देखें तो वाकई वो जमीनी स्तर पर किसानों को वो मदद दिलाने में सक्षम है ये योजनाएं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये योजनाओं से किसानों को जमीनी स्तर पे कोई लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म में भी लाभ मिल जाए तो भी जो है कि गनीमत है, उसकी भी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि जब इस तरह की योजनाओं को आप लाते हैं और ज़मीन के स्तर पे पुराने गलतियों से आप सीख नहीं लेते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि पहले भी काफ़ी प्रसारित करके आप योजनाएं ले आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं को लेकर इतनी ज़्यादा उसमें घोषणाएं की गई है, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें किसान बिल्कुल मजबूर है। एक कंपनियां जो है कि उनको बीमा के इंश्योरेंस के पैसे किसानों के लिए लेना मुश्किल चीज़ हो जा रहा है, तो वो प्रीमियम जमा करते रह जाते हैं लेकिन बीमा नहीं मिल पाता। ये एक व्यवहारिक सच्चाइयाँ हैं, तो हमें मान के चलना पड़ेगा। मैं अभी भी कहूँगा सरकार से, आपके इस प्लेटफॉर्म से मेरी मांग होगी कि उनको नगद राशि की सख्त आवश्यकता है, वो नगद राशि दें। अगर उनको कर्ज देते हैं तो ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराएं, तो भी उनके लिए राहत की स्थिति बनेगी। कि आप किसानों को कर्ज मत दीजिए। किसान ने जो फसल उगाई थी अभी रबी की फसल, जिसमें गेहूं और दूसरी तमाम चीजें हैं, उनकी कीमतों को बढ़ाया, एमएसपी क्यों नहीं बढ़ा दिया गया, ठीक कर दिया गया? वो तो किसान की एक मदद हो जाती है, बड़ी मदद हो जाती है। एमएसपी को सरकार ने कहने के लिए बढ़ाया भी है, लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूं कि एमएसपी की समस्या ये है, नमक जैसी स्थिति में एमएसपी में क्या मायने रखता है? देखिए, हम लोगों ने देखा है कि किसान जब जाते हैं वहां पे तो सबको लिया ही नहीं जाता है। वो एक सिफारिश जो कि आज के कितने वर्षों पहले थी, उस सिफारिश को भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। आज के वक्त में अगर फिर से समीक्षा की जाए तो 1800-1900 गेहूं की कीमत के बजाय में 3000 के आसपास होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो एक तो कीमत अगर 3000 कर भी देते हैं, लेकिन जब तक आप अपने खरीद के कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, आप प्रत्येक जिले में हर समय जो 24 आवर क्यों नहीं वो खुली हुई होती है कि किसान का जब इच्छा हो तब वो जाके जो है कि अपना फसल जो है कि वो एमएसपी पे बेच सके। लेकिन ये सुविधा हम लोग आज तक दे ही नहीं पाए। कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आज भी जाकर के गांव के इलाकों में देखिए, जिन केंद्रों पर गल्ले की खरीदारी होती है, जरा सी बारिश आ जाए वहां पर रखने की व्यवस्था नहीं होती है। कोल्ड स्टोरेज में वो कहते हैं कि जब वहां लेकर के जाते हैं तो उन केंद्रों से वो लोग पैसे लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले, कि आपका हम तभी लगाएंगे जब आप प्रति क्विंटल इतने पैसे दीजिए। सवाल ये है कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे तौर पर ध्वस्त 70 सालों में अभी तक देखने को मिल रहा है, अभी भी उसको लेकर के किसी किस्म के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की जा रही है। सिर्फ ये कह दिया गया कि हम इतना पैसा किसानों से या कृषि से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहे। प्रधानमंत्री ने तो कई बार लाल किले की प्राचीर से कहा 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्च करने के लिए जा रहे हैं। 5 साल हो चुके हैं, 6ठा साल चल रहा है। जी हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज वहीं का वहीं है। किस स्तर पर आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुई है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बेहतर नहीं हुआ, कुछ बेहतर नहीं हुआ है। और जो सड़कों की भी बात की जा रही है तो वो भी पीपीपी मॉडल पे सड़कें बनी हैं। जो भी जिन सड़कों की भी अगर आप बात करते हैं तो हाईवेज जो बने हैं, और उन पे टोल टैक्स कितना ज़बरदस्त लगा है। मतलब आपको जो है 50 किलोमीटर जाने के लिए 100 रुपया जो है टोल टैक्स दे देना पड़ता है। तो असल में जब तक कि जनोपयोगी और जनता पे आधारित नीतियां नहीं होंगी, जनोन्मुखी नीतियां नहीं होंगी, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। समस्या सरकारों के साथ यही रही है। केवल इसी सरकार की समस्या नहीं है, पहले की सरकारों की भी समस्या थी, और इस सरकार की समस्या चूंकि ज़्यादा है, चूंकि यहाँ तो जो है खून में व्यापार है। अभी जैसे धान की फसल, खरीफ की फसल की शुरुआत होने जा रही है। अब जब किसान के पास में रबी की फसल ही जो तबाह हो चुकी है, ओलावृष्टि से, बारिश से, आदि से, उसका सही पैसा नहीं आ पा रहा, सरकारी केंद्रों पर वो बेच नहीं पा रहा है, सस्ते में औने पौने में बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। अगली फसल वो उगाएगा कैसे, पैदा कैसे करेगा, लगाएगा कैसे? उसके लिए ही सरकार कोई राहत देती। अगली फसल के लगाने के लिए सरकार ने राहत क्या दिया है? कुछ राहत नहीं दिया। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर देनी थी तो सरकार जो थी सीधी सीधी घोषणा करती कि किसान की फसल जिस भी स्थिति में हम सारी फसल खरीदेंगे, जो हमने एमएसपी घोषित करी है उस पर हम सारी फसल खरीदेंगे और नकद खरीदेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। भाई किसान अगली फसल की तैयारी करता, और अगली फसल के लिए सरकार घोषणा करती कि हम उसको जो है सब्सिडी पे खाद देंगे, सब्सिडी पे पेस्टिसाइड्स देंगे। तो ये जो घोषणा जो असली होनी चाहिए थी वो इस ना पैकेज में है और ना कहीं बजट में थी, ना सरकार की। अब बारी आती है, क्योंकि हम तीनों दिन की समीक्षा कर रहे, बारी आती है सबसे ज्यादा मुश्किल में मजदूर हैं। राहुल लाल जी, मजदूरों के लिए जितनी घोषणाएं की गई हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे घोषणाएं जो बहुत लॉन्ग टर्म के को लेकर के की गई हैं, मजदूरों के लिए लॉन्ग टर्म की घोषणाएं क्या है? मजदूरों के लिए फौरी राहत दिए जाने की, जो वो राहत जो जिससे उनको वाकई निजात मिले मुश्किलों से, आपको दिखा? मुझे नहीं नज़र आ रहा है कहीं से भी। देखिए, अभी भी ये उठाया जा रहा है कि मजदूरों की पहचान कैसे हो। वो तो बिल्कुल भूखे प्यासे, हम किसी को सड़क पे बिल्कुल दिख रहे हैं बदहवास हालत में, उनको आप लीजिए और उनको मदद कीजिए। तमाम सरकारें जो भी भविष्यवाणी कर रही है, हम लोग देख रहे हैं पूरे देश भर में इसमें करोड़ों की संख्या में मजदूर
किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, सड़कों पे हैं और उसको इस पूरे पैकेज में उसके लिए कुछ भी नहीं है। 3,500 करोड़ का एक जो आपने उनके खादी की व्यवस्था की बात की, वो भी हमने देखा कि वो प्रत्येक दिन के हिसाब से करें तो 6 रुपया से बहुत न्यूनतम स्तर पे हो जाता है। तो ये उन मजदूरों के साथ मजाक है। अगर ये मजदूर जो है कि वो नेशन बिल्डर्स हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना और उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना आवश्यक है। वो स्किल्ड लेबर्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। और अगर वो दोबारा फिर वो महानगर नहीं आता है तो हमारे कल कारखाने कैसे चलेंगे और हमारी सारी स्थितियां क्या रहेंगी। तो ये पूरी तरह से विफल रहा ये पैकेज जो है कि उनको ना तो किसानों को एड्रेस कर पा रहा है, ना ये मजदूरों को एड्रेस कर पा रहा है, ना ही ये मध्यम वर्ग को एड्रेस कर पा रहा है, ना तो ये जो एमएसएमई के जो लोग थे, एमएसएमई को भी आपने जो है कि लोन देने की बात की। इस बीच में राज्यों के स्तर पर जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ऐसे मजदूरों की पहचान करा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में उनकी स्किल के आधार पर उनको हम नौकरियां देने जा रहे हैं, 15,000 से कम उनकी सैलरी ना हो ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मगर मजदूरों को गांव के स्तर पर किस किस्म की नौकरियां, किस किस्म के काम वहां पर मिलेंगे? मनरेगा से जुड़े हुए काम या फिर ज्यादा से ज्यादा ईंट भट्ठों के स्तर पर काम? और गांव में क्या काम होगा? मनरेगा के बजट को भी सरकार ने घटा दिया है। यानी अब लंबे समय से मनरेगा का जो बजट था वो पर्याप्त नहीं था। अगर आप पहले देखेंगे तो मनरेगा का बजट काफी बड़ा होता था। मनरेगा में कितने काम होते हैं? कोई छोटा सा तालाब हो गया, छोटी सी सड़क नाली हो गई, इसी चीज को लेकर के कराया जाता है। और क्या होता है मनरेगा में सर? नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अभी इसमें लोगों को राहत मिलता तो आपने तो मनरेगा का बजट बढ़ाया नहीं। पिछले साल मनरेगा का जो बजट था वो भी आपने खर्च नहीं किया, उसको आपके पैसे लैप्स कर जा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक इस समय यह है कि आप घोषणाओं को छोड़िए, जमीन पे क्रियान्वयन कीजिए, उसी से समस्या का समाधान निकलेगा। ये तो 4 दिन 3 दिन इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम चीजों के बावजूद अगर हम लोग निष्कर्ष जमीनी स्तर पर देखें तो निराशापूर्ण स्थिति है। अमलेंदु जी, अब ऐसे में मजदूरों को लेकर के सरकारों को क्या करना चाहिए? मतलब किस किस्म से सुझाव आपके मन में है, या आपको लगता है कि अगर ये चीज हो जाती तो मजदूरों के लिए बेहतर होता, उनके राहत के लिए, उनके रीस्टैंड होने के लिए? देखिए, सरकार जो मजदूरों के लिए कुछ ना करे, केवल जो करने जा रही है, जो घोषणा कर रही है वो ना करे, तब भी मजदूरों के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें जो हैं वो काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 करती हैं और आप मजदूरों के रिहायशी होने की बात करते हैं। तो इसलिए जो सरकारें जो हैं, जो कर रही हैं, जो घोषणा कर रही हैं मजदूरों के लिए, वो घोषणाएं ही ना करें तो मजदूरों के ऊपर बड़ी कृपा होगी इन सरकारों की। तो फिर अब मजदूर तो महानगरों से, शहरों से वापस अपने अपने घरों तक, गांव तक पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। ऐसे में फिर उनका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कहूँगा कि जो खेती है असल में अब उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है बोझ पड़ेगा। और जो लौट के गया है मजदूर, मुझे नहीं लगता कि वो लौट करके फिर आएगा। जो या आने में भी उसे वक्त लगेगा, 6 महीने, साल भर, तो वो सोचेगा भी नहीं क्या स्थिति होगी। और जिस तरीके से श्रम कानूनों का जो तोड़ रही है ये सरकार और उल्लंघन कर रही है, मतलब सारे संघर्षों के बाद जो मजदूरों को जो अधिकार मिले थे उनको छीना जा रहा है, तो इसके बाद मतलब मजदूर जब अगर आएगा काम करने के लिए तो बंधुआ की स्थिति उसकी होगी, बंधुआ मजदूर होकर के आएगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और ऐसे में आवश्यकता होती है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ही ध्यान देने की थी, जो ये सरकार नहीं दे रही है। और ज्यादा से ज्यादा था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ध्यान केंद्रित। जिन कंपनियों में ये लोग काम कर रहे थे, सरकार ने तो कहा कि साहब निकालिए मत उनको, या उनकी सैलरी मत रोकिए, अगर कोई घर बैठा है नहीं आ पा रहा तभी वो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। इस पॉइंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये जमीनी स्तर पर न्याय संगत है या हो पाएगा ऐसा? लेकिन अगर सरकार जो है ये दूसरों से कह रही थी, पहले वो खुद ही इस बात का ध्यान रखती कि अपने कर्मचारियों की पेंशन और भत्ते जो थे वो ना रोकती। तो सरकार जो दूसरों को सलाह दे रही है वो पहले खुद पे अमल करती। जब उत्पादन ठप है, सीधी बात है कि जो छोटा है, एमएसएमई है, मतलब जो छोटे हैं, मान लीजिए कोई चाट के खोमचे वाला है या रेहड़ी वाला है या छोटा होटल वाला है, तो उस जो छोटा होटल वाला है, मतलब इस तरीके के जो छोटे छोटे व्यापार हैं जो 10 लोगों को, 20 लोगों को या 5 लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं, उनकी स्थिति आज क्या है? वो खुद हैंड टू माउथ हो गए हैं। यानी उनकी होटल बंद है, उनकी दुकान बंद है और उसका किराया लगातार जारी है, तो उन्हें किराया तो देना ही है। अब वो खुद खाएं कि अपने जो उन्होंने 20 लोग रखे हुए थे उसके लिए इंतजाम करें। तो ये असल में सारी जो है वो जब तक कि, मैं फिर कहूँगा कि सरकार जब तक कि जनोन्मुखी नहीं होगी और अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं समझेगी, जिस जनता ने इसको चुन के भेजा है, तब तक ये जो है नीतियों में स्पष्ट नहीं हो सकता। अब चूंकि मैंने इसलिए सबसे पहले किसानों का जिक्र किया कि इस 3 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को क्या कुछ मिला, उनको आसानी कितनी होनी है, उसके बाद में मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है।
एमएसएमई को लेकर के भले ही 6 बड़े अनाउंसमेंट किए गए और एमएसएमई में 3 लाख करोड़ लोन की व्यवस्था की बातें कही गई, हालांकि उसमें उसकी परिभाषा बदलने पर बड़ा जोर दिया गया कि उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। ये जो एमएसएमई को लेकर के घोषणाएं हुई राहुल लाल जी, ये इससे एमएसएमई रिस्ट्रक्चर या रिस्टैंड होने में आपको लगता है कि अब सक्षम होने की दिशा में बढ़ पाएंगे? देखिए, एमएसएमई 2016 के नोटबंदी और 2017 के जीएसटी के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो झटकोले देख रही थी जी। और कोविड के बाद तो उसकी स्थिति बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। एमएसएमई को भी 3 लाख करोड़ के लोन की ज़रूरत नहीं थी। अगर लोन देना भी था तो वो आपको एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन देने की ज़रूरत थी। इसलिए वो भी वहाँ पे जो उन लोगों से बातचीत करें, वो आखिर लोन लेने की हिम्मत कैसे करेंगे? अगर वो लोन ले लें एमएसएमई का कोई व्यक्ति और कल के डेट में उनका उत्पादन, उनकी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, तो फिर तो वो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और ज़्यादा वो कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए एमएसएमई का ये कोई उसका पुनरुद्धार इस मामले से हमें नज़र कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है। आपको इसमें सरकार को दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। आप कहीं न कहीं से जहाँ से भी पैसे लाएं, उनको कम से कम आपको इसमें पंप आउट करना पड़ेगा और आपको उपभोक्ताओं के पॉकेट में भी डालना पड़ेगा, इधर से भी डालना पड़ेगा, तभी आपकी अर्थव्यवस्था के पहिया घूमेंगे। अन्यथा फिर हम लोग इसी तरह से भविष्य में कोई और घोषणा ही सुनते रहेंगे और हम लोग छोटी दुकानें, वो छोटे-छोटे दुकानदार जिन्होंने अपने सालों की, वर्षों की जमा पूंजी लगा करके छोटी सी दुकान, छोटा सा होटल, इस टाइप से चीजें उन्होंने खोली थी, जिसमें से 5-6 लोग, 7 लोग काम कर रहे थे। उन्होंने तो अपना सब कुछ लुटा करके वो वापस अपने घर को चले गए। वो रीस्टैंड कैसे होगा? मुश्किल है। देखिए, आप सोच के देखिए कि जो वर्कर्स गए हैं, जिस स्थिति में, अमानवीय स्थिति में वो गए, वर्कर्स गए और उन दुकानों, छोटे दुकानों और होटलों के मालिक भी चले गए, सब कुछ उनके पास में, पैसे खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे स्थिति में हम लोग इसको फिर से कैसे खड़ा करेंगे? इसी के लिए दुनिया भर में जो है कि अलग अलग देश अपने कैपेसिटी का 5%, 3%, 10% जो भी है, वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च उनको करने पड़ रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था की गति रुक जाएगी। प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं जान है जहान भी है, अब देखिए जान के पक्ष से भी आप ध्यान हटा दे रहे हैं। कोविड के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। उस पक्ष पे भी हमारा ध्यान नहीं है, आपने स्वास्थ्य तंत्र पे भी ध्यान नहीं दिया और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के ऊपर जिस तरह से केवल घोषणा के लिए आपने पैकेज की घोषणा की, जिसका जमीन पे प्रभाव अभी स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं कि वो नहीं दिखेगा हम लोगों को।